Hello and Namaste. Welcome to our next lecture on atomic emission spectroscopy. Now itself its name indicate there is an atom whose emission is takes place. Emission means what? There is an complete burning of the atom takes place, and where we can analysis that by the there is a change in the color of flame. फ्लेम के कलर के चेंज होने के इसके ऊपर हम इसका स्टडी किया जाता है. सो दैट इज एन एटॉमिक emission spectroscopy. Myself, Professor N.D. Phupate, and I am delivering this lecture. Okay, so in this lecture or in this chapter, what we have to study is the sometimes there is a definition. Then, first of all, the introductory part is very important. Then, as per syllabus, there is a principle. Then, there is an instrumentation, application and interference. We are studying the interference point in the atomic absorption spectroscopy. In the next one, in today's lecture, we are covering about what is the basic definition, introduction, definition, or everything like the objective is there. Like we have to study about the introduction and definition of atomic emission spectroscopy. Then we have to understand the principle of atomic emission spectroscopy. उसका प्रिंसिपल कैसा है, क्या है. वन थिंग, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों में भी प्रिंसिपल नियरली अबाउट सेम है. सिर्फ वर्ड एमिशन है, वहाँ पे एमिशन हो जाता है सब्सटेंस का, वेयर एज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटम रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगते हैं. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस पॉइंट. So we have to study about the introduction, definition of AES, means atomic emission spectroscopy, principle of AES. Then instrumentation is there, somewhat instrumentation there is, and we have to study about we have to take the samples dissolved in a particular solutions, then conversion of that one to find droplets, and that droplets are goes toward the flame where burning is going to be started, and on the basis of the color of the flames we are analyzing the substance. So that whole things we have to study by the use of instrumentation. Okay, and with different components are there, as I told to you, there are the different components. Okay, here is the instrumentation is somewhat changed. Initially we are using initial parts, radiation source and all things. In the case of atomic emission spectroscopy, there is a no role of radiation source. हम इसके अंदर रेडिएशन सोर्स का रोल नहीं है. ओके, बट आपको मोनोक्रोमैटो, स्लीट, एवरीथिंग, इवन फिल्टर्स, दैट एवरीथिंग वी आर यूजिंग, बट दैट यूजिंग लेटर वर्ड्स. इनिशियली वी आर यूजिंग conversion like solutions. We are taking the substance, converting fine droplets, and then goes toward the flame, also called as atomizer, and everything. And then there is the role of the mirror, monochromator and all comes. So we have to study about everything about the instrumentation in different components, and finally understand the applications of atomic emission spectroscopy. तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें application of atomic emission spectroscopy study करना है. So we move further about the introduction. So what we are studied, introduction means emission spectroscopy is also called as a flame photometry. Flame means what, आप जो गैस लेते हैं, आपके घर में भी गैस होगा सब में, तो जो फ्लेम है वैसे इसके अंदर फ्लेम है. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेम फोटोमेट्री, ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसको दो वर्ड है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एएस तो कॉमन है, इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेम फोटोमेट्री एज वेल एज फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. बाय द यूज ऑफ फ्लेम एटॉमिक का एमिशन होता है, सो दैट्स व्हाई इज अ फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, so in this type of emission spectroscopy where atomic emission is measured, हम क्या कर रहे हैं, in this type of emission spectroscopy where atomic emission, atom का क्या होता है, emission होता है.
इज मेजर यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब उसकी बर्निंग होगी तो कलर चेंज होने लगेगा फ्लेम का, तो वो कौन से टेम्परेचर पे और कौन से वेवलेंथ पे वो चेंज हो गया है, तो वो स्टडी हम इसमें करेंगे। और नॉट ओनली जस्ट दैट वन, वी आर ऑल्सो स्टडी द अमाउंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन आर देयर, तो ये भी हम इसमें करते हैं। व्हेन मेटेलिक स्पेसीज इज इंट्रोड्यूस्ड, हमने क्या किया है, मेटेलिक स्पेसीज जो है हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर ली है। सो whenever there is an metallic species introduced into the flame, metal salt is burned। वो क्या होता है, जैसे हम इसके अंदर मेटालिक साल्ट हमने ऐड किया, फ्लेम के अंदर उसको पास किया, पास करने के बाद साल्ट क्या होने लगता है, बर्न होता है, इमिट सर्टन कलर वेवलेंथ। वो क्या करता है, इमिट द सर्टन कलर वेवलेंथ। सो एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ कलर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करता है, ये मेजर करता है। What they are measuring the intensity of the colors, कितना इसका कलर का इंटेंसिटी है, that it can be measured by this one। each metal gives the characteristics color, each and every metal, हर metal क्या करता है, gives us an characteristics color and the intensity of color despite the amount of quantity of metal present। अब कितने अमाउंट में दे रहा है कलर वो, अब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। अब एक तो चीज़ फिक्स है कि हर मेटल का एक अलग वेवलेंथ रहेगा, लेकिन वेवलेंथ कब तक हमें मिलेगी, जब तक उसके अंदर मेटल है, जब तक वो बर्न होते रहेंगे तब तक हमें क्या मिलेगा, वो फ्लेम मिलेगी। जैसे वो खत्म हो जाएंगे अपने आप फ्लेम नॉर्मल हो जाएगी। तो हम इसमें से इंटेंसिटी ऑफ कलर डिस्पाइट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मेटल प्रेजेंट, ओके, डिपिक्ट्स द amount of the quantity and metal present, that also can be identified by this text, is identify the presence or absence of metals। अगर इसके अंदर कोई भी मेटल एब्सेंट रहेंगे तो ये भी रिजल्ट देगा, लेकिन है कि नहीं मेटल, ये भी स्टडी हम इस टेक्निक में करते हैं। अब सबसे एक चीज़ होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल 1 और सेकंड जो सेकंड इन्फिनिटी है, इसके ग्रुप के ही सब्सटेंस को स्टडी करने लगता है। ठीक है, 5 ही ग्रुप है, 5 ही मेटल ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लेम फोटोमेट्री में स्टडी करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सो लाइक दिस वन, these are the 5 types of this one that we are studied। we are study that one in the case of application, so don't worry about that। so we are study the different metal concentration, even if the concentration is very low, like 1 ppm, ppm means what, part per million, okay, so even ppm means 1 microgram per ml, okay, so ग्राम का 1000 से भी छोटा पार्ट अगर हम लेंगे तो उसके अंदर अगर हमने सॉल्यूशन में ऐड किया, दैट इज बिकम 1 ppm, ओके। सो वो भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, बट इट इज इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव टू व्हाट, नॉन मेटालिक मेथड। जनरली बोनो एटॉमिक एमिशन अब्जॉर्प्शन में भी मेटालिक नॉन मेटालिक हम स्टडी नहीं करते, दे आर इनसेंसिटिव फॉर दैट वन। सो दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, okay। so even there is a small another theoretical part I have added, just take thinking over it, सिर्फ समझो, ऐसे कुछ नहीं कि आई एम जस्ट एडेड दैट वन, ओके। सो हमने जस्ट एनर्जी के बारे में यहाँ पे कंसेप्ट लिया है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम रिसाइड इन अ कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स नोन एनर्जी एज अ सेल। हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम रिसाइड्स इन अ सेंट्रिक स्पेयर, अगर हमने एक स्पेयर लिया उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स है, known as a shell, हम उसको एक शेल बोलेंगे, in which the orbit the nucleus of an atom, और उसके अंदर एक ऑर्बिट है, उसके अंदर सेंटर एक न्यूक्लियस है। अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता नहीं है, शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ईच शेल इज असाइंड अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। उसने क्या किया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है उसके अंदर, द वैल्यू n इज इंटीग्रल, माइट बी देयर इज एन वन एटम, माइट बी 2, माइट बी 3, माइट बी इन्फिनिटी, सो इट माइट बी इंटीग्रल। सो नंबर डिटरमाइन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स, उसके अंदर जितने एटम्स रहेंगे दैट डिटरमाइन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, उस ऑर्बिट के अंदर कितनी एनर्जी, एंड रिलेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेल। नॉट ओनली नंबर से हमें ये तो नहीं, सिर्फ ये नहीं पता चल रहा कि इतनी एनर्जी है, इट आल्सो डिस्टेंस बिटवीन द सेल टू न्यूक्लियस, द लोअर द नंबर, ओके, जितना डिस्टेंस फ्रॉम द सेल टू द न्यूक्लियस, द lower the number, the lower the energy of the electrons and the closer is to the nucleus, okay। जितनी lower energy रहेगी of the electrons and the closer to the is to the nucleus। so electron can further distinguished, हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द ऑर्बिटिक ऑर्बिटल्स, तो उनके लोकेशन के बीच पे
So specified region in space that depends on their energies. So उनके एनर्जी पे ऊपर वो डिपेंड रहता है. So that thing, okay. So here is what, here is an there is an definition of atomic emission spectroscopy. There is the same thing in this location energy on nucleus. So in the case of atomic emission spectroscopy, so in that definition, just read out it. The definition is that in atomic emission spectroscopy में, अब it is in related to the thermal or heat, the thermal or electric energy. अब हमारे इसमें अगर गैस है तो गैस के लिए हम क्या करते हैं, गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं, वो जो फ्यूम्स है गैस है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब इसमें क्या है, द थर्मल और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हमें तो चाहिए, फ्लेम तो चाहिए हमें. सो वी रिक्वायर थर्मल और इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द आर्क. एक तो आर्क है, अदरवाइज वी आर टेकिंग द फ्रॉम द फ्लेम और अदरवाइज वी टेकिंग द स्पार्क. अब जैसे कि आपके पास गैस भी है और आपके पास सेगड़ी भी है, ठीक है, तो दोनों में भी आपको हीट मिल रहा है, तो उसमें आर्क के थ्रू हमें मिल रहा है और एक जगह पे थ्रू गैस देयर इज एन फ्लेम वी आर गेटिंग. ओके, फ्लेम कांट बी प्रोड्यूस इन द केस ऑफ दैट सेगड़ी. ओके, लेकिन क्या होता है फिर भी it can produce an intense heat. Okay, so you get the flame, spark or plasma is used to excite an electron. ये जो एनर्जी है वो एनर्जी किसके लिए यूज होती है, एक तो सब्सटेंस को बर्न करने के लिए भी यूज होता है और सब्सटेंस का कन्वर्जन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट आल्सो देयर. सो यूज टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर टू हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हम क्या कर रहे हैं, लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू देयर हाई एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब जैसे हमें पता है फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में जैसे कन्वर्ट होता है तो क्या करते हैं, गिव्स आउट देयर एनर्जी एंड कम टुवर्ड्स देयर ग्राउंड स्टेट. वो क्या होते हैं, उनके खुद के ग्राउंड स्टेट की तरफ आने की कोशिश करते हैं. ओके, सो एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वी आर सेइंग दैट वन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर रिस्पेक्टिव लोएस्ट एनर्जी स्टेट और वी कैन से एट देयर ग्राउंड स्टेट और स्टेट ऑफ द लोएस्ट एनर्जी. ओके, जैसे हम सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड टू द एटम्स, अब उनकी एनर्जी है और हम बाहर से एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो व्हेन वी सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड टू द एटम, दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स रेसिडेंस ग्राउंड स्टेट, जैसे वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स रेसिडेंस ग्राउंड स्टेट शैल टू द और मूव और शेल टू द हायर एनर्जी स्टेट सेल. ओके, वो क्या होता है कि उसका ग्राउंड लेवल स्टेट से एक्साइटेड लेवल की तरफ वो मूव करने लगता है, कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट. एज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन आर इन सेल विथ ग्रेटर एन, हेंस हैव मोर एनर्जी देन द लेस स्टेबिलिटी. अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, तो जो इंटीग्रल है एन है वो क्या होता है, दैट सेल इज ग्रेटर, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी एंड हेंस मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें स्टेबिलिटी कम होगी और हमें स्टेबल करना है फिर से, तो वो क्या करेगा, गिव्स आउट देयर एनर्जी एंड कम टूवर्ड द ग्राउंड स्टेट. सो दैट एवरीथिंग वी आर एक्सप्लेनिंग द फार्मूला. प्रिंसिपल के अंदर हम वो पूरा फार्मूले के साथ इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो मूव टूवर्ड्स द प्रिंसिपल. सो अब एक चीज़ याद रखनी है, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दो, यू गेट इट ईच एंड एवरीथिंग. हमें क्या करना है, we taking the metallic salt, we add it into the liquid. So we just saying the word liquid containing metallic salt solution. हम क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड के अंदर क्या है आपका मेटेलिक साल्ट है जो हमें स्टडी करना है, उसके अंदर हमने ऐड किया है. ओके, सो इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम. अब जैसे हमने इसके अंदर ऐड किया इट कन्वर्ट्स. अब हमें पता नहीं है, अब प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम कि एक 10 ppm 100 ppm कितना भी हम सोल्यूशन लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे. हमें इतना पता नहीं है हमने कितना कौन सा तो मेटल ऐड किया है, ठीक है, उतना हमें पता है, तो हमें उसका कंसंट्रेशन. और ये जो टेक्निक है ना, सबसे पहले ये एक याद रखो, ये मेटल डिटेक्शन फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेटल डिटेक्शन इन द उसके यूरिन एनालिसिस के लिए और उसके अंदर जो बॉडीज़ है उसके अंदर जो स्टडी है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है,
वी टेक द मेटालिक सॉलिड और मेटालिक सब्सटेंस डिजोल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, हम क्या कर रहे हैं, फ्लेम के अंदर पास किया हमने। अब लिक्विड है, लिक्विड को हमने फ्लेम के अंदर पास किया तो क्या हो जाएगा, दैट सॉल्वेंट गेट वेपराइज्ड। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा, और सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, लिविंग बिहाइंड दैट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट, और वी कैन से साल्ट। हमें क्या मिलेगा, सॉलिड स्टेट पार्टिकल और हमें साल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर और एनर्जी हमने बढ़ा ली, वी आर प्रोवाइडिंग द मोर हीट टू दैट वन। अब क्या हो जाएगा, अगेन दैट साल्ट गेट वेपराइज्ड। हम क्या करेंगे, वो साल्ट को भी वेपराइज। रिमेंबर वन थिंग, दैट एटॉमिक एमिशन एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों के भी प्रिंसिपल नियरली अबाउट सेम है। सो हमने क्या किया, सॉल्वेंट वेपराइज लिविंग पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट और द साल्ट। सो साल्ट गेट वेपराइज्ड, और साल्ट का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, लिक्विड का सॉलिड, सॉलिड टू गैस। ओके, रिमेंबर वन, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस। सो सॉल्ट वेपराइज कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट, उसका कन्वर्जन कहाँ पे हो जाएगा, गैसियस स्टेट में हो जाएगा। सो व्हाट आर द गैसियस मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, उनका फिर अगेन liquid to solid, solid to gas. Now what are the gaseous molecules are there, that gaseous molecule dissociate, उनका dissociation means breakdown होने लगेगा, और to give a neutral atoms, they get the neutral atoms और also called as the radicals। हम उसको क्या बोलते हैं, radicals बोलते हैं। ठीक है, so these neutral atoms, ये न्यूट्रल एटम जो रहेंगे, अब इनके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, न्यूट्रल हमने बोला है, तो न्यूट्रल एटम से एक्साइट बाय द थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लेम। इनका क्या हो जाता है, हम थर्मल एनर्जी के वजह से इनमें एक्साइटेशन होने लगता है। न्यूट्रल एटम एक्साइट बाय द थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लेम, सो द एक्साइटेड एटम क्विकली इमिट्स द फोटोन। वो क्या करने लगते हैं, इमिट करने लगते हैं, इमीडिएटली क्विकली इमिट्स द फोटोन, और क्या होते हैं, रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। वो क्या करने लगते हैं, इमिट तो करने लगेंगे, क्योंकि अब दे कन्वर्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे न्यूट्रल एटम थे, ग्राउंड स्टेट पे थे, अब उन्होंने एनर्जी ऑब्जर्व कर ली। एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद क्या हो जाएगा, दे गो टूवर्ड द एक्साइटेड स्टेट एंड रिटर्न टूवर्ड द ग्राउंड स्टेट, एंड व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज देयर, वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करने लगेंगे। दे गेन दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दे इवॉल्व। जितने उन्होंने एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने गेन की, उतनी की उतनी एनर्जी उन्होंने क्या करेंगे, इवॉल्व करने लगेंगे। दैट एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या रहेगी, एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था, इसमें फार्मूला था E इक्वल टू एच म्यू, वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला, बट ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट मीन व्हाट, E1 टू E0 मीन्स व्हाट, E0 इज ग्राउंड स्टेट, E1 इज योर हायर एनर्जी स्टेट। तो उसके इसमें डेल्टा E मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू कैन बी रिप्लेस बाय C by lambda, C is the velocity of light in air and at a particular wavelength. So we get it that equations where if you able to see orbital of the electrons, delta is the energy difference, हम क्या बोलेंगे इसको, energy difference हम उसका बोलेंगे, that is delta E, nothing but the energy difference between E1 to E2. E2 is your excited state, E1 is your ground state, so that is delta E is equal to E2 minus E1 is equal to h mu. So we can replace by this mu by C by lambda. Okay, so we get the equation delta is equal to hc by lambda. That is your final equation, where the v is the frequency. Okay, so c is the velocity of light and lambda is the wavelength. So that can be explained by Boltzmann law. It can be explained by a Boltzmann law, the fraction of free atoms, the fractions of free atom that are thermally excited, the fraction of free atoms that are thermally excited is governed by a Boltzmann distribution. Fraction of free atoms that are thermally excited. अब ये जो है ग्राउंड स्टेट, न्यूट्रल एटम थे, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड कन्वर्ट हो गए, कम टू द ग्राउंड स्टेट, तो उनको स्टडी करने के लिए वी आर यूजिंग द बोल्ट्जमैन लॉ. सो द फ्रैक्शन ऑफ फ्री एटम दैट आर thermally excited is governed by a Boltzmann distribution. So n star by n is equal to delta E minus delta E upon kT. n star is the unstable or excited electron, study कर सकते हैं हम उसमें. So we can say the number of
एक्साइटेड एटम्स, वो जो एटम्स है उसमें कितने नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम है ये, n इज द नंबर ऑफ एटम रिमेन्स इन द ग्राउंड स्टेट, उसमें से कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट पे बने रहे। डेल्टा इज द डिफरेंस, अभी हमने डेल्टा ही पढ़ा था, डेल्टा इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स, ground state excited state, that is an difference in the energy level, so that k is the Boltzmann constant, ये जो k है इसको हम क्या बोलेंगे Boltzmann constant, and that t is the temperature. Okay, so on the basis of this equation we can calculate the results. So that much is about the principle of atomic emission spectroscopy. Now we are moving towards the इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, हम क्या कर रहे हैं अब इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट की तरफ मूव रहे। सो इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, इफ यू एबल टू सी इन दिस डायग्राम, हियर इज एन particular gas supply is there, then there is an, what is this, there is an sample holding system in which we added the samples, in which there is an liquid. So हम first one is the pre-treatment of sample, then from this one there is a delivery of the sample is there. So हम क्या करेंगे, यहाँ से delivery of sample यहाँ पे चले जाएगा। Here is what, there is a nebulizer, here is what, there is an nebulizer. From this nebulizer, if you are able to see, there is an fine droplets are there. Okay, so here is an roll of nebulizer. From the nebulizer, here it goes further towards the flame, तो ये क्या हो जाएगा ब्रेन, और ये यहाँ पे ड्रेन रहेगा। ड्रेन मीन्स व्हाट, हमने जैसे बोला था कि फाइन जो ड्रॉपलेट्स है वो फाइन ड्रॉपलेट्स हमें चाहिए, लेकिन जो अनप्रॉपर ड्रॉपलेट्स है तो अगेन गो टूवर्ड द ड्रेन, ड्रेन की तरफ चले जाएगी वो, ठीक है। सो हियर इज व्हाट, देयर इज अ, so we are discussing on this one, means just one by one English, like the pre-treatment of sample, delivery of sample, then nebulizer, then flame atomizer. So here is an flame atomizer is there, where we identify the coolant air, then everything we are supply to this one. Then there is an radio frequency generator is there. Here is what, there is an, here it can't explain, there is a mirror is there. Then there is a, it is toward the monochromator. Slit is lies over here, then there is a monochromator, from monochromator there is an filter, and filter, from filter it go to a detector, and from detector it computer and read out, so we'll get the results are there. So this one is an instrumentation part is there, we have to go each and every part in detail, so be focused. Okay, so there is an pre-treatment of sample, sample के हम क्या करेंगे, पहले pre-treatment करेंगे। so analyte is to be dissolved, हम सबसे पहले analyte लेंगे, that analyte free from substance interfere with emission or absorption measurement. Okay, and if such things happens, we have to remove that analyte. Okay, so analyte is to be dissolved, सबसे पहले तो यूनिवर्सल साइज, एक प्रॉपर साइज का यूनिमोलिकुलर, और द मेटल जो है हम इसका स्टडी करना है, हम मेटल लेंगे और हम क्या करेंगे, डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू अंडरगो नेबुलाइजेशन एंड सुटेबल टू द फ्लेम, उसका स्टडी करने के लिए हम उसको डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। देन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ सैंपल, सैलरी हम सैंपल लेने लगेंगे। सो डिवाइस यूजर टू डिलीवर द सैंपल इनटू द फ्लेम प्ले वाइटल रोल, हमें क्या करना है, इतना तो आपको प्रिंसिपली पता चल गया है कि सैंपलिंग सिस्टम है, उसमें से आपको सैंपल लेना है, उसको डिलीवर करना है, एंड डिलीवर किसकी तरफ करना है, टूवर्ड द नेबुलाइजर। नेबुलाइजर क्या करेगा, कन्वर्ट दैट लिक्विड टू फाइन ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट का फिर हम स्टडी करेंगे। सो डिवाइस यूजर टू डिलीवर द सैंपल इनटू द फ्लेम प्ले वाइटल रोल इन डिटर्मिनेशन एक्यूरेसी ऑफ एनालिसिस। देन मोस्ट पॉपुलर मेथड इज नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होमोजीनियस, होमो सिंगल एक डायरेक्शन से होमोजीनियस सॉल्यूशंस टू फ्लेम इन स्टेडी स्टेट, एक ही स्टेडी स्टेट में इसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। ओके, सो ब्रेकअप लिक्विड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, हम क्या करते हैं, ब्रेकअप लिक्विड्स इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल मॉडिफायर टू रिमूव द लार्ज ड्रॉपलेट्स एंड पास सर्टन साइज स्मॉल ड्रॉपलेट्स। इसको क्या करेंगे हम, ब्रेकअप द लिक्विड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, हम स्मॉल ड्रॉपलेट में इसको कन्वर्जन करेंगे, एंड देयर इज एन एरोसोल मॉडिफायर इज देयर,
सो द एरोसोल मॉडिफायर इज टू रिमूव द लार्ज ड्रॉपलेट्स. वो क्या करेगा, लार्ज ड्रॉपलेट को रिमूव करेंगे एंड पार्ट्स द सर्टेन साइज स्मॉल ड्रॉपलेट्स, and then it reach to the flame and convert analyte to the free atoms. Okay, flame convert the analyte to the free atoms. So still we have to study about this nebulizer now. There is the next component is the your nebulizer. So we have to study about the nebulization. If you are able to see in this diagram, here is what there is analytes get come towards here. Here if you are able to see, here also there is a liquid sample come from this point. So in the pneumatic, also called as a pneumatic nebulization technique, used in most atomic spectroscopy, even the atomic emission or atomic absorption, everywhere we are using that one. So sample solution introduced through an orifice into the high velocity gas jet, usually the oxidant. Okay, so हम इधर से सैंपल पास कर रहे हैं और इधर से ऑक्सीडेंट आ रहा है. सैंपल सोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू एन ऑरिफिस इनटू अ हाई वेलोसिटी गैस जेट. हम क्या कर रहे हैं, ये जो गैस जेट है, ओके, सो हियर इज व्हाट, हियर इज एन ऑक्सीडेंट पासिंग, और इधर से हम क्या कर रहे हैं, आपका एनालाइट पास कर रहे हैं. सैंपल सोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू एन ऑरिफिस इनटू अ हाई वेलोसिटी गैस जेट, यूजुअली व्हाट, देयर इज एन ऑक्सीडेंट. Okay, so now you get the oxidant, then there is an fuel gas is there which come from this point. इसके साथ कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हो फ्यूल गैस का. फ्यूल गैस का काम इधर है जो यहाँ पे चली जा रही है. ठीक है, सो सैंपल स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस इनटू द गैस स्ट्रीम इन पैरेलल. ओके, सो माइट बी एक ही डायरेक्शन में हम इसका मूवमेंट कर सकते हैं, पैरेलली भी कर सकते हैं, लेकिन अब इस डायरेक्शन से आ रहा है ऑक्सीडेंट के परपेंडिकुलर एंगल पे, और पैरेलल मींस व्हाट, एक तो इसी डायरेक्शन से आ रहा था और इसी डायरेक्शन से आपका ये भी आ रहा है इस साइड से ऐसा. तो लेकिन इस चीज में क्या हो रहा है, देयर इज एन, हम क्या कर रहे हैं, सैंपल स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस इनटू द गैस स्ट्रीम इन पैरेलल और परपेंडिकुलर मैनर. हम पैरेलल और परपेंडिकुलर मैनर की इसमें करते. सो सैंपल स्ट्रीम बिगैन टू ऑसिलेट, जैसे यहाँ पे आ जाएगी, जैसे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आने लगेगा, दैट बिगन टू ऑसिलेट्स. ठीक है, हम यहाँ पे ऑसिलेट होने लगेगा. ठीक है, और जैसे ही ऑसिलेट होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, when it caused the oscillate over here, then when they got it the oscillate produce the filaments which collapse to form as droplets. Filaments is what, very fine particles collapse to form a droplets in spray chamber. इसके अंदर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको फाइन मिक्सिंग चेंबर हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको there is a fine droplet that you can able to see this one, and there is a drain, here is a nebulizer where जो अनवांटेड है, जो यूनिफॉर्म साइज के नहीं आ रहे उनको हम रिमूव कर रहे हैं. तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल जो नेबुलाइजर का हमें पता है, फार्मास्यूटिक्स के स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में भी हमने स्टडी, एरोसोल्स हमने स्टडी किया है. सो सेम लाइक एरोसोल्स वेयर द फाइन ड्रॉपलेट्स दैट कैन प्रोड्यूस. और सिंपलेस्ट वन, आप जो स्प्रे यूज करते हैं तो स्प्रे के अंदर भी क्या रहता है, लिक्विड रहता है, और जैसे हम स्प्रे करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, आप स्प्रे को जैसे प्रेस करेंगे ना तो फाइन ड्रॉपलेट्स लिक्विड फॉर्म के जो आते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर एक यूनिफॉर्म साइज के स्मॉलर ड्रॉपलेट्स हमें मिलते हैं. ओके, और लार्जर ड्रॉपलेट्स रिमूव फ्रॉम द सैंपल स्ट्रीम बाय मिक्सड पैडल कन्वर्ट टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स. अब कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे पैडल्स रहते हैं, सो वी आर कीपिंग सम पैडल्स. पैडल्स क्या करेगा कि अनवांटेड जो है लार्जर साइज को पैडल करके कंट्रीब्यूट टू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, एंड दैट कैन आल्सो डन बाय इम्पोर्टेड ऑनटू द वॉल्स. ओके, फाइन ड्रॉपलेट्स कैसे हो सकते हैं, ऐसे मूवमेंट करके भी यहाँ पे आपको फाइन ड्रॉपलेट्स मिल सकते हैं, इम्पोर्ट ऑनटू द वॉल सरफेस. सो फाइनल एरोसोल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट. हमें फाइनली क्या मिलता है, देयर इज एन फाइन मिस्ट. अगर आपने यहाँ पे देखा तो वी गेट द फाइनल मिस्ट, एंड दैट मिस्ट कंबाइंस विद द ऑक्सीडेंट फ्यूल. नाउ दिस कम्स विद द ऑक्सीडेंट तो आपके साथ है ही, लेकिन ये फ्यूल के साथ कंबाइन होकर फिर आगे जाके कहाँ पे चले जाएंगे, देन इट गोज टूवर्ड द फ्लेम. ओके, सो कैरिड इनटू द बर्नर और एटोमाइजर की तरफ चले जाएगी और फ्लेम की तरफ चले जाएगी. सो दिस वन इज योर थर्ड पॉइंट. ओके, ये आपके पास क्या है, थर्ड पॉइंट हो गया. ओके, नाउ मूव टूवर्ड द फोर्थ वन. फोर्थ वन में क्या है, कन्वर्जन हो गया. जैसे एटोमाइजर हम जो बोलते हैं, एटोमाइजर में हमने क्या किया है कि कन्वर्ट फ्रॉम सबसे पहले लिक्विड टू सॉलिड टू गैस, फ्रॉम गैस देन
dissociation to neutral atoms, and neutral atom get convert from ground state to the excited state, gives out the energy and come to the ground state. So everything is this flame atomizer. Here is also a same thing, aerosol droplet enter into the flame. फ्लेम के अंदर सबसे पहले तो इनको फ्लेम के अंदर चले गए. अब हमने फाइन ड्रॉपलेट्स फॉर्म किए, नेबुलाइजर ने क्या किया है, फाइन ड्रॉपलेट आपको मिल गए. अब वहाँ से ड्रॉपलेट कहाँ पे चले गए, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट. फ्यूल और ऑक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन के साथ, ऑक्सीडेंट बोल के हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और एज अ फ्यूल वी कैन यूज एनीथिंग. ओके, हाइड्रोजन और समथिंग वी आर यूजिंग. सो वी आर यूजिंग द फ्लेम्स इनटू दैट वन. सो अब एरोसोल ड्रॉपलेट इनटू द फ्लेम. फ्लेम में जैसे पहुंचेगी तो प्रिंसिपली हमने जो किया वो हमें याद रखना है. सॉल्वेंट इवापोरेट्स लिविंग द ड्राई सॉलिड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, वेपर्स का कन्वर्जन डिसोसिएशन हो जाएगा, और डिसोसिएशन होकर क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रल एटम मिलेंगे. दिस न्यूट्रल एटम अंडरगोज थ्रू फ्लेम एंड यूज्ड एज अ एटोमाइजर. ये जो एटम्स है, दिस एटम्स अंडरगो थ्रू द फ्लेम एंड यूज एज अ एटोमाइजर. हम उसका एटोमाइजर के रोल में यूज करेंगे. ओके, सो till that is a flame atomizer. Okay, now there are the types of atomizer that we have to be study, or the burner that we have to be study. So that burner plays important role. What I am saying, I am using this different type of burner, out of which atomic absorption spectroscopy में मैकना बर्नर और मेका बर्नर, टोटल कंजम्पशन बर्नर और प्री मिक्स बर्नर हम यूज करते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बर्नर. अब बर्नर का रोल क्या है, रोल इज टू प्रोड्यूस अ फ्लेम, और फ्लेम ऑटोमेटिक प्रोड्यूस अ फ्लेम. वेरियस टाइप ऑफ बर्नर यूटिलाइज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट. अब हर अलग अलग बर्नर है और उनका कॉम्बिनेशन भी अलग अलग है. सो फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन और डिफरेंट वन. सो दे आर द 6 टाइप्स ऑफ बर्नर दैट वी आर यूजिंग in the case of this atomic emission spectroscopy, AES, where make a burner, total consumption burner, pre-mix burner, where total consumption में 100% हम यूज़ करते हैं, लेकिन ड्रॉबैक है कि 90% ड्रेन की तरफ चला जाता है, 5% बचता है. प्री मिक्स बर्नर में क्या होता है कि बर्नर के जाने के पहले हम इसको मिक्स करने लगते हैं और फिर वहाँ पे चला जाता है. ओके, लैंडग्राफ बर्नर, शील्डेड बर्नर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एसिटाइलिन बर्नर्स. मैक्सिममली हम पहले 3 टाइप की स्टडी की है बुक में, मैंने थोड़े 3 पॉइंट और ऐड कर लिए इसके अंदर. ठीक है, सो इन द केस ऑफ दिस वन, द फर्स्ट 5.1 पॉइंट इज द प्रीमिक्स बर्नर और लैमिनार फ्लो बर्नर. सो फ्लो इज द लैमिनार कांस्टेंट. सो इन द केस ऑफ दिस वन, इट इज एन बर्नर नॉट यूज करंटली. पहला जो बर्नर था इनिशियल में, ये इसका यूज किया गया था. गैस मूव्स इन अ लैमिनार पैरेलल एंड नॉन टर्बुलेंट रहती है. ओके, देन फ्रिक्शनलेस बोलते हैं हम. ओके, सो सैंपल एस्पायरेंट एंड देन मिक्स विद द फ्यूल. हम क्या करते हैं, सैंपल एस्पायर करते हैं, देन मिक्स विद द फ्यूल अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एज ऑक्सीडेंट हम इसमें यूज करते हैं. ठीक है, देन और न्यूट्रल मीन्स सिंपल गैस वी आर यूजिंग एज अ फ्यूल. सो एम्प्लॉय फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलीज, हम अल्कलीज को डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज करते हैं. सो बट द प्रॉब्लम इज दैट प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर. इसका टेम्परेचर रेंज बहुत ही सबसे कम है, एंड लो एक्साइटेशन एनर्जी. सो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी भी बहुत कम है. सो बर्नर नॉट यूज करंटली. इसकी वजह से ये जो है बर्नर अब करंटली हम इसका यूज बहुत कम करते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट वन. देन देर इज अ सेकंड वन, दैट इज अ टोटल कंजम्पशन बर्नर, वेयर देर इज एन टोटल कंजम्पशन टेक्स प्लेस. सो इन दिस केस we use the hydrogen as a fuel. हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करते हैं इसके अंदर. देन ऑक्सीडेंट बोल के ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर हॉट फ्लेम, टू प्रोड्यूस द हॉट फ्लेम. हियर इज अ फ्यूल, हियर इज एन ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडेंट यहाँ से आ रहा है और फ्यूल यहाँ से आ रहा है, इसके साथ सैंपल साथ इसका मिक्सचर होने वाला है. सो हियर इज व्हाट गोइंग टू बी हैपन, लिक्विड सैंपल फ्यूल ऑक्सीडेंट इंट्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट इनलेट्स. इस इनलेट से, ठीक है, ऑक्सीडेंट आ रहा है, देन फ्यूल आ रहा है, एंड सैंपल ऐसे सेपरेट आ रहा है. ठीक है, तो अब जैसे देखा जाए तो यहाँ से ऑक्सीजन आना चाहिए था, यहाँ से आपका फ्यूल और यहाँ से आपका बेस से आपका सैंपल आता है. सो फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट बर्न टुगेदर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम एट टॉप. फ्यूल और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एक तो सबसे पहले वो दोनों चले जाते हैं और वहाँ पे बर्न करने लगते हैं और फ्लेम फॉर्म करने लगते हैं. ठीक है, देन लिक्विड सैंपल ड्रेन फ्रॉम द बॉटम्स. हम क्या करते हैं,
फ्रॉम द बॉटम्स वी अप्लाइड दैट लिक्विड सैंपल इनटू दिस वन, हम इसमें लिक्विड सैंपल नीचे से इसके अंदर पास करते हैं, ठीक है। व्हेन सैंपल रिचेस बेस ऑक्सीडेंट एस्पायर टू फाइन ड्रॉपलेट्स, तो क्या करता है, सैंपल रिचेस द बेस ऑक्सीडेंट जो है एस्पायर टू फाइन ड्रॉपलेट, उसका ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, सो द कन्वर्ट रेसिड्यू एंड फाइनली एक्साइटेशन प्रोसीजर, ओके। बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज अन टर्बुलेंट, फ्लो प्रॉपर नहीं मिलता है। सेकंड थिंग, इट इज प्रोड्यूस अ नॉइस, ये हमें क्या मिलता है, नॉइस प्रोड्यूस करता है, ओके। और एस्पिरेशन रेट वैरीज विद द डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ठीक है। टर्बुलेंट की वजह से क्या होता है, एस्पिरेशन रेट जो है वैरीज विद द डिफरेंट सॉल्वेंट, अलग अलग अगर आप सॉल्वेंट यूज करने लगेगा तो इसकी रेट वैरीज होगा। सुटेबल ओनली फॉर एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो है ना सुटेबल ओनली फॉर एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ही है, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, इतना याद रखो। मैक्सिममली कभी कभी यूज भी किया जाता है, नो डाउट। इसके एडवांटेजेस भी वैसे ही है, सिंपल टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिंपल है। कंजम्पशन अलाउ टू टोटल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू रीच द फ्लेम, इसका जो है ना ये टोटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल टू रीच द फ्लेम, लगभग सभी का सभी सैंपल रीच होता है। फ्री फ्रॉम एक्सप्लोजिव एंड हैजार्ड्स, ये जो है ना फ्री फ्रॉम एक्सप्लोजिव एंड हैजार्ड्स, हैजार्ड और एक्सप्लोजिव से इसको दूर रख सकते हैं। जो हम लैमिनार फ्लो जो बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हजार्ड भी है, विथ सी दिस वन प्री मिक्स बर्नर और लैमिनार फ्लो बर्नर हम जो बोलते हैं। सो इन द केस ऑफ दिस वन, if you able to see in this diagram, here is what there is a sample from which they are entered, aspiration air is there which comes, then there is an oxidant is comes, then there is a fuel is come, and here is a mixing paddles are there, okay। so paddle क्या करेगी कि ड्रेन करेगी फाइन ड्रॉपलेट्स को इधर लेने के लिए काम करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज एन primitive type of burner used in the flame photometry and was used earlier. So as a fuel it used the natural gas, natural gas का क्या करता है, as a use as a fuel, और ऑक्सीजन का यूज एज अ ऑक्सीडेंट बोल के हम इसके अंदर करते हैं, ओके। सो मिक्सचर रिच ओपनिंग टू अ बर्नर टू फ्लेम, यहाँ से इसमें चला जाता है। अब हियर इज अ सम ड्रॉपलेट्स कम टुवर्ड्स हियर द, तो जैसे हम नेबुलाइजर से हम इसका कन्वर्जन करके ड्रॉपलेट्स में होगा, तो जो लार्ज साइज ड्रॉपलेट्स है अगेन गो टुवर्ड द ड्रेन एंड रिमेनिंग वन गो टुवर्ड हियर। द ड्रॉबैक इज दैट ओनली 5% ऑफ द सैंपल फ्रॉम फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स रिच फ्लेम, इसमें सिर्फ 5% ही सैंपल फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो पाता है और रीच टुवर्ड द बर्नर, 95% गेट ड्रेन। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि 95% सैंपल इज गेट ड्रेन, ये 95% ड्रेन होने लगते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, दैट फ्लेम प्रोड्यूस स्टेबल इफेक्टिव एटोमाइजेशन ऑफ सैंपल, अब 5% जाएगा तो 100% रिजल्ट आपको मिलने वाले। सो फ्लेम प्रोड्यूस स्टेबल इफेक्टिव एटोमाइजेशन ऑफ द सैंपल। एडवांटेजेस और इसमें क्या बोल सकते हैं हम, इसमें देयर इज अ नो नॉइस प्रोड्यूस्ड, नॉन टर्बुलेंट कंटिन्यूस फ्लो है, क्लॉगिंग नॉट ऑकर, वहाँ पे अब क्लॉगिंग भी नहीं होती। डिसएडवांटेजेस व्हाट, अब आपके पास अगर दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस उसके वोलेटिलिटी के बीच में, ओके, सो जो ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा वो पहले सेपरेट होने लगेगा, जो लेस वोलेटाइल है तो उसकी वजह से रिजल्ट अफेक्ट करने लगी। इंटेंसिटी ऑफ इमिशन रिड्यूस ड्यू टू टू सॉल्वेंट इन अ सैंपल, आपने अगर क्या किया है, सॉल्वेंट एक नहीं लिया, मल्टीपल सॉल्वेंट लिए, तो इसकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इमिशन रिड्यूस हो जाएगी व्हेन वी यूज द टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ओके। इट माइट बी एक्सप्लोजिव, it might be explosive, may occurs in the mixing chamber and sensitivity lost because of the sample waste, okay। अब ड्रेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी भी लॉस हो रही है, और इट माइट बी एक्सप्लोजिव, ये जो मिक्सिंग हो रहा है तो ये एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। सो दैट इज द थिंग अबाउट द थर्ड वन, ओके। सो लेडोग्राफ बर्नर, सो स्मॉल एक्सप्लेनेशन है, a small sample liquid droplets vaporized and moved to base of flame in the form of cloud। तो यहाँ पे सिर्फ one word we have to remember, form of clouds, large droplets condensed at site and then drain up। Here also the same thing is there, large droplet को हम condense कर रहे हैं और then drain to up। Shielded burner is another type, shielded there is a protection to the burner, shielded is done to get better analytical sensitivity,
हम इसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं टू गेट अ बेटर एनालिटिकल सेंसिटिविटी. इन दिस फ्लेम was shielded from the ambient atmosphere by a stream of inert gas. हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन किससे कर रहे हैं, शील्डेड फ्रॉम द एम्बियंट एटमॉस्फेयर, बाहर के एटमॉस्फेयर से हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय अ स्ट्रीम ऑफ इनर्ट गैस. हम इसके अंदर इनर्ट गैस पास करके हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज द शील्डेड बर्नर. देन देयर इज अ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और एसिटाइलिन फ्लेम. So his high energy flames are there. These flames were superior to other flames. सबसे तो बढ़िया चीज़ है कि superior to other flames for effective producing free atoms. Example is a metal with very reflective oxides such as aluminum and titanium. Metal with the very reflective oxides such as aluminum, titanium. Drawback of it is the higher temperature reduce its usefulness. The drawback is that इसकी टेम्परेचर रेंज बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बाकी के हिसाब से. देन बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर रिड्यूस इट्स यूजफुलनेस. ज़्यादा भी टेम्परेचर की वजह से इसका यूजफुलनेस कम हो जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कली मेटल्स बिकॉज दे आर इजिली आयोनाइज. फ्लेम के पास जाने तक ही आयोनाइज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर इज वेरी हाई. देन देयर इज इंटेंस बैकग्राउंड इमिशन विच मेक्स द मेजरमेंट ऑफ द मेटल इमिशन वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस बैकग्राउंड इमिशन, बैकग्राउंड इमिशन का भी क्या हो रहा है, दैट इज इंटेंस है विच मेक्स द मेजरमेंट ऑफ मेटल इमिशन वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज ऑफ दैट वन measurement of metal emission is very difficult. So that thing we have to be important. So this one is the sixth type of this one. Then there is a temperature of the flame. So when we use the different fuel और oxygen mix करके temperature कितना मिलता है हमें. When we use the as a fuel as a hydrogen and oxidant as oxygen, then we get a temperature of 2800. When we use the hydrogen as a fuel, air as an oxidant, we get the temperature of 2100. Then acetylene plus oxygen, so we get the temperature of 3000 degrees Celsius. When we take the acetylene plus air, we get 2200 degrees Celsius temperature. And when we take the cyclogen plus oxygen, we are getting the very high temperature, that is a 4580. So cyclogen and oxygen most preferred than hydrogen and acetylene. हाइड्रोजन और एसिटाइलिन से भी ज़्यादा साइक्लोजन ऑक्सीजन का हम बहुत प्रीफर करते हैं. सो स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्लेम शुड नॉट इंटरफेयर विद द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द एनालाइट. जो स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्लेम जो रहेगा वो शुड नॉट बी इंटरफेयर विद द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ द एनालाइट. सो द फ्लेम डिटरमाइंस यूटिलिटी इन द फ्लेम इमिशन. फ्लेम डिटरमाइंस व्हाट, द यूटिलिटी इन द फ्लेम इमिशंस. उसकी यूटिलिटी डिटरमाइन करता है. ओके, सो that about that important point of the temperature. Then अब आपके पास फ्लेम है, फ्लेम के अंदर आपने एस्पिरेट कर लिया, कन्वर्जन हो गया, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड हो गया. तो एक्साइट होने के बाद क्या करेगा, दैट गिव्स द रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो ये क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन रेडिएशन देगा. अब आपके पास हम क्या करेंगे, आपके पास सपोज ये जो है, ठीक है, इफ यू गो टूवर्ड द इनिशियल डायग्राम, तो आपके पास इधर आ गए हम, ये एस्पिरेट हो गया. तो अब आपके पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डिटेक्टर सेट किया है, वी सेट डिटेक्टर टूवर्ड्स वन साइड, ठीक है, लेकिन रेडिएशन इधर चले जाएंगे. अब हमें इस रेडिएशन को वेस्ट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, वी आर सेटिंग ओवर हियर. हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे, देयर इज एन मिरर ओवर हियर. हम इसके अंदर मिरर सेट करेंगे. तो जैसे मिरर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर अनवांटेड जो रेडिएशंस है. ओके, सो व्हेन वी सेट अ मिरर फ्रॉम दैट डायरेक्शन, द फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ इज देयर. द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्केव मिरर मीन्स इट इज एन रिफ्लेक्टिव कॉन्केव मिरर, वी आर सेट ओवर हियर. तो वो मिरर क्या करेगा, रेडिएशन फ्रॉम द फ्लेम इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन मोस्टली लूजेस, तो लूज होते हैं. तो हमें वो लूज करने के बजाय क्या करना है, यूटिलाइज करना है. सो मैक्सिमम रिजल्ट मिरर लोकेटेड बिहाइंड द बर्नर. हम उसके बैक साइड पे क्या करेंगे, बर्नर के बैक साइड पे हम मिरर सेट करेंगे. सो दैट इज अ रिफ्लेक्टेड बैक रेडिएशन टू स्लिट. सो दैट कॉन्केव मिरर यूज फ्रंट फेस रिफ्लेक्टिंग टाइप, विच वी आर यूजिंग द फ्रंट फ्लेट रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ बर्नर वी आर यूजिंग. सो ये क्या करेगा कि जो वेस्ट जाने वाला रेडिएशन है दैट पास टूवर्ड द स्लिट एंड फ्रॉम स्लिट इट गो टूवर्ड द मोनोक्रोमेटर. सो अब क्या हो जाएगा,
देन देर इज नेक्स्ट रोल इज टू स्लिट. सो द एंट्रेंस एंड एग्जिट स्लिट, यहाँ पे क्या रहेगा, एंट्रेंस स्लिट रहेगा और एग्जिट स्लिट यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर डिस्पर्शन. entrance and exit slit used before and after the dispersion. So entrance slit cut out surrounding radiation. entrance slit क्या करेगा, surrounding radiation जो है cut out करेगा and allow only the flame radiation. फ्लेम से जो एक्सेस रेडिएशन है वही उसको अलाउ करेगा. एंड द एग्जिट स्लिट प्लेस्ड आफ्टर द मोनोक्रोमेटर, और वो एग्जिट स्लिट जो है ना मोनोक्रोमेटर के बाद में अलाउ सेलेक्टेड वेवलेंथ टू पास, उसमें से जो सेलेक्टेड वेवलेंथ है वही पास करने का काम क्या करेगा, एग्जिट स्लिट. So from slit go to the monochromator. So monochromator में as we are knowing that prism or grating are used. So we know the prisms, quartz material used for making the prism, as quartz is transparent to or intine region. तो quartz का यूज करते हैं. grating में grooves रहते हैं. Okay, parallel lines हम बोलते हैं, essential a series of parallel straight lines cut into the plane surface. Okay, then there is from the monochromator, mono means single chromatic radiation हमें मिलती है. Then from that one is go toward the filter. So filter का रोल क्या है, still from that unwanted radiation that comes, so mineral of pass exact amount of wavelength of radiation. ये क्या करेंगे, जो हमें important है, जो एक्चुअल में रिक्वायर है, so mineral to pass the exact amount of wavelength of radiation and desired wavelength from the flame will measures remaining absorbed. So unwanted radiation क्या करेगा, वो stop करेगा. So desired wavelength from the flame will measures remaining absorbed. So जो flame से जो radiation आ रही है डिजायर्ड वेवलेंथ फ्रॉम द फ्लेम, उसको हम मेजर करेंगे और उसके सिवा जो जो भी रेडिएशन आएगी उसको ये फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेगा. सो दैट इज रोल ऑफ द फिल्टर्स. एंड देन देयर इज द रोल ऑफ द डिटेक्टर. आई थिंक वी इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर. सो मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस 10⁶ factor barrier layer cell where selenium layer, then there is an photocathode anode and where the platinum and गोल्ड एंड सिल्वर की उसकी मेटेलिक लेयर है, जैसे कि आयरन की है, और सेलेनियम लेयर उसके अंदर ही है. एंड फोटो ट्यूब SiO, देयर इज अ मेटल का मिक्सचर जो है CF2 MgF और SiO का हमने मिक्सचर लिया था और उसके मेटल जो बनते उसके ऊपर रेडिएशन गिरता था. फोटो कैथोड एनोड और गोज टुवर्ड द एनोड एंड गिट गो द डिफ्लेक्शंस. सो डिटेक्टर्स हमने ऑलरेडी बहुत बार स्टडी किए. इवन इन द नेक्स्ट लेक्चर मीन्स एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यही चीज़ रहेगी. So we have to prepare the UV and Neptune telemetry presentation and lectures. Okay, then applications. So in the case of application there is a qualitative analysis. So in the case of qualitative analysis generally alkali and alkaline earth metals हम क्या कर रहे हैं, generally alkaline earth metals can be estimated by flame photometry. Okay, अब जो मैंने अभी बोला था कि 5 टाइप के मेटल हमने इसमें स्टडी करते हैं. Detect the element of group 1 and group 2. Okay, so group 1 periodic table का जो है तो periodic table sodium, potassium, lithium, magnesium and calcium. These are the 5 types are there that are get detected. Okay, as characteristics wavelength is emitted by the element, hence detector recognize that wavelength and atom is detected. So this it can be detected. Manual method for detection is via flame characteristics color. So color जो है फ्लेम के, तो फ्लेम के कलर के बेसिस पे भी हम सब्सटेंस पता कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है सोडियम प्रोड्यूसेस येलो कलर, तो अगर आपके इसमें येलो कलर मिल रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं, यस देयर इज एन सोडियम प्रेजेंट. ओके, सो दैट इज एन क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव भी हम कर सकते हैं. सो मेनी अल्कलीज एंड अल्कलाइन मेटल्स अमाउंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द फ्लेम फोटोमेट्री. सो अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स मीन्स व्हाट गोइंग टू हैपन, they are alkaline and alkaline metals amount can be detected by the flame photometry. So compare with the standards. हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, उसका तो हम कंपेरिजन करेंगे. अब अल्कली रहेगा तो उसका पर्टिकुलर कलर रहेगा तो सेमी कलर देना चाहिए. अब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा वो फ्लेम भी देगा, तो हम उसमें क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मैक्सिमम इतना याद रखो कि हम मैक्सिमम टाइम उसमें कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिफाई करते हैं. मेटल का कितना कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर प्रेजेंट है और पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर कितना है, तो हम उसका कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. अदर एप्लीकेशंस आर देयर as I told you the same sodium potassium lithium in the serum. आपका जो सीरम है इसके अंदर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और लिथियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. इवन द बॉडी फ्लूइड्स, ओके, CSF, ओके, एंड यूरिन. सो यूरिन एनालिसिस के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं. सो हम जो लैब्स है, लैब्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा फ्लेम फोटोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ करती है. सोडियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है.
सोडियम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर उसका कितना कंटेंट है, एंड दैट इंट्रासेलुलर फ्लूइड दैट कैन बी स्टडीड. सो सोडियम का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, पोटेशियम का इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, दैट वी कैन स्टडी. देन लिथियम एस्टिमेशन इन द साइकेट्रिक थेरेपी. आपकी जो साइकेट्रिक थेरेपी है इसके अंदर लिथियम का एस्टिमेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. इन सॉइल एनालिसिस, अगर आपके पास सॉइल है, सॉइल एनालिसिस के अंदर फॉर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. इन इंडस्ट्रियल वेस्ट, so in the soil analysis for sodium, potassium, calcium, magnesium, in industrial waste, the like अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर भी जो सैंपल्स है उसकी स्टडी के लिए भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. ओके, सो ग्लास सीमेंट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भी मीन्स ग्लास प्योरिटीज सीमेंट, इसके स्टडी के लिए, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के स्टडी के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. देन एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर के एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. नेचुरल वाटर फॉर द एलिमेंटल कॉज, हार्डनेस, एनालिसिस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अल्कली मेटल्स. सो अब इसके अंदर सभी के इसमें इतना याद रखो कि मेटल की स्टडी है तो मेटल का अमाउंट कितना रहता है. अब जैसे मैगी का लिया तो उसमें का हजार्डस मेटल जो थे हम बॉडी के लिए इनप्रॉपर थे, तो हमने उस टेक्निक के लिए भी इसका यूज़ किया था. सो दैट इज़ अनदर एग्जांपल्स फॉर दिस वन. So this is all are the applications in the atomic emission spectroscopy. The next lecture we are studying about the atomic absorption spectroscopy. Both are very easy. In this one, I think we are cover up with the atomic emission spectroscopy. So thank you very much for your patience listening. I hope you get it this chapter, okay, because that is connected with the atomic absorption spectroscopy. So let's see in the next lecture about the atomic absorption spectroscopy. So thank you very much for your patient listening and wish you a very happy learning. Thank you very much.